जय जिनेन्द्र एवरीवन। गुरुदेव के चरणों में वंदन, साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में वंदन, बैंगलोर विराजित सभी चारित्रिक आत्माओं के चरणों में वंदन। Warm welcome to everyone. Good morning, everyone. I'm Nihal Baid, a CA by profession, Bangalore TPF member and convener for today's event. Let's start this event with Namaskar Mahamantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Savve Sahunam. Nihalji, you're on mute. We lost you, I think. Sorry, I just got disconnected. Some network issue. Yeah, okay. Now I request Lakshmipaji Malu, our Bangalore branch TPF president, for his words. Thank you, Nihalji. परम श्रद्धेय आचार्य श्री महास्वामी जी के चरणों में वंदना। मुनि रजनीश कुमार जी टीडीएफ के जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है, उनके चरणों में श्री कोटि वंदन। बेंगलोर में विराजित सारी साथियों को, चरित्र आत्माओं को मेरा वंदन। और I welcome all the participants from TPF office bearers, TPF working committee, and also people from our TPF group based out of Bangalore as well as other places. So first of all, thank you for joining this program. And I just want to set some of the things which I liked and also I expect from our speaker to make us understand. So since I also belong to this technology world last several years, and what gets excited me about fintech is the first is that fintech ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा inclusive technology, not consumer tech. Consumer tech is the biggest beneficiary in terms of usage, but fintech जो है वो across the world it is able to include people who are not part of let's say technology chain. So ये एक अच्छा benefit है, and specifically normally we feel that India is kind of a second rung into adopting technology, learning technology. But fintech space में my view is that India is leaps and bounds ahead of rest of the developed world in terms of usage, in terms of applying it. So एक fintech का एक unique advantage जो India को मिल रहा है, and that my view that this fueling of fire, obviously it's a lot of entrepreneurs like Ravi and others are doing that. But fundamentally, I think it's I don't know right now, is it a policy driven or technology is driving the policies? I think basically things which government brought in terms of Aadhaar, UPI, I think that's all bringing all this together. So I think we'll get some understanding from Ravi. Is it technology is driving the policy or policy is driving the technology? But fintech, I think in India, everybody across the world keeping eye on it, and we have seen recently the biggest fintech, maybe potentially across the world, Paytm got listed. And that is also a testimony of that our focus from a country perspective, our entrepreneurial spirit is more focusing on fintech. So fintech is a very exciting space. People normally we get excited by consumer tech, but consumer tech advantage it only reaches to people who are upper middle class or middle class. Lowest section of the society, I think fintech is unique advantage. Or isliye if you see that fintech companies are getting valued super high compared to consumer tech. So ये हम आज समझेंगे रवि जी से कि fintech में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. Mostly क्या हो रहा है तो I think we can read a lot, but क्यों हो रहा है. So I'll get back to you. I'll give back to you, Nihal ji. Thanks. Thank you so much, Lakshmipaji, for your words. Now I would request Shraddha Baid to welcome our today's speaker. Thank you, Nihalji. Our today's speaker, Mr. Ravi Sethia, is the founder and CEO of Consights Tech Private Limited, which runs the fintech app Uddhar. He's also a member of TPF Bengaluru branch and a native of Sarthar. For over last 10 years, he has been actively following the startup ecosystem in India and abroad with a keen focus on technology for social good. He's a graduate of IIT Guwahati and a BTech in computer science and has been a delegate at various international events focused on innovation and entrepreneurship. He brings an experience of over 8 years in data science and fintech domain.
At Udhar, they have been trying to unlock the financial access for Bharat leveraging consumer insights. They have been supported and awarded by various programs of government, academia, and industry focused on startups. A warm welcome to you, Mr. Ravi. Over to you. Thank you. Thank you, Good evening, Shraddha. everyone. Raviji. Thank you, Lakshmi Padji, Rahulji, Nehal, all of you for giving me this opportunity. So I'll just begin the presentation. One second. आराध्य के चरणों में वंदन और अपने TPF के पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश मुनि के चरणों में वंदन. So what's fueling the fintech fire? Let me just start sharing the screen in a minute. Is it visible? Yes, Ravi. We can see it, sir. Okay. So there's no Zoom overview that is coming, right, on your screen? We can see the presentation. Full presentation, right? Cool. Okay. So a brief about me. I've been active member of TPF events, in events at least, not from the organizing team. So most of you might know me. I have been based in Bangalore, working in this sector of fintech for last 8 years now. 6 years running my own startup. I just completed my 75th month of entrepreneurship. That's a vanity metric that I have. Prior to this, I was working at a company called EXL Analytics, and there also coincidentally, and this move into fintech was not deliberate, but coincidentally it so happened that I was given a task of doing data science for banking clients, and that probably laid the foundation of me getting into fintech. Entrepreneurship was always there right from college, when I got an exposure to attend a lot of events which were focused on innovation and entrepreneurship. So roughly 10 years following the whole startup space and 6 years being actively working on this. So how my journey began in kind of like 2015, mid of 2015. Those were early days of fintech in India, because if you look at fintech, what is happening is there was no UPI, there was no demonetization that has happened, there was no Geo, and we were doing whatever traditionally was being done. There were few payment companies, online payment was just coming on, online e-commerce was taking off. Aadhaar had been there for 5 years, but hadn't been on such a scale, because it was being debated a lot whether Aadhaar is good for the society or not, what should happen. And in 2015, what happened is the government launched a call for applications or innovations around leveraging Aadhaar. And that's where I got a chance to submit an idea, which was Aadhaar se Udhar at every place in India. And that application or that idea has now led me investing 75 months of my career into this. Back then in 2015, I probably didn't know much about fintech. But today I can say I am far more bullish about fintech than I was 5 years, 6 years back. So what's behind this fuel or the fire that is there? And everywhere we see, or all of us are using one or the other fintech app daily. There are like out of 64 unicorns, there are like 16 or 17 of them which are fintech players in India. So obviously a big part of the startup ecosystem is fintech. So let's get into what's fintech. Yeah, so I run the app Udhar. You can know more about me at ravisethia.com, what I've been up to. Some of the info might not be public, so you can feel free to reach out to me on any social media channels. So what's broadly fintech? So fintech is when finance and technology comes along and it is supported by regulation for a new innovation. And that's broadly
what fintech has come to be known with. It's a very broad domain per se, right from your early days of 2000, where PayPal was launched. So PayPal was the payments company in US. Last 20 years has been a lot about fintech. Now, doing a simple transaction or doing a banking transaction at a bank with a mobile phone, OTP, all this comes under fintech in that sense, broadly. But if you look at more from a new innovative things that are happening in the last 10 years, it's to do with a lot to do with what India Stack has done. So when we refer to India Stack, what is happening is in India, there are traditionally most of the people did not have a bank account, and this was a scheme that was launched by the Congress government in 2010, that let's get everyone a Jandan account because people are not banked. What was happening is everyone is transacting, but they are keeping their money at their home or with their neighborhood banker or a जो local साहूकार होते थे कि भाई मेरे पैसे वहीं पे पड़े हैं, बैंक जाएंगे कहाँ, बैंक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी ये होती है 2010 के आसपास से, समझ लीजिए, जब बैंक अकाउंट्स नहीं है, बैंक्स की भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिमिटेड है, एंड यू कैन नॉट हैव मोबाइल फोन बेस्ड ट्रांजैक्शंस एंड ऑल. एंड उस टाइम में अगर आप ये जैसे ये स्टार्ट 2018 के आसपास का है, 2017 का, तो आप देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज, चाइना, इंडिया ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, अफ्रीका में नाइजीरिया ले लीजिए, सबके यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि इतने मिलियंस ऑफ लोग, इतने करोड़ लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, जो कि पहला फाउंडेशन स्टोन है किसी भी फिनटेक की बात करने के लिए, कि भाई पैसे ही नहीं होंगे आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में कहीं पे, तो हाउ विल यू ट्रांजैक्ट. एंड अभी अगर हम देखें आज से मतलब लगभग 4 साल 5 साल हो चुके, तो फिनटेक में एक्चुअली लीड करने वाली कंपनीज भी कंट्रीज भी यही हैं, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सभी जगह सबसे ज्यादा फिनटेक की बातें हो रही है कि जितने भी लोग एक्सक्लूडेड रह गए, जैसे लक्ष्मीपत जी बोल रहे थे कि इंक्लूसिव की बात, तो जितने लोग एक्सक्लूडेड रह गए उनको अंदर कैसे लाया जाए. तो सबसे पहली चीज तो इंटरनेट, दूसरी चीज हो गई बैंक अकाउंट, और उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी की. ये तीन चीजों ने मिला के ये सब जो पिछले 20 सालों में हुआ है, फिनटेक की नींव रखी है एक तरह से, कि ये एक मूवमेंट चल रहा था. तो एकदम बेसिक सी चीज चल रही थी कि भाई हम बैंक अकाउंट सबको कैसे दे दें, सबके खाते में पैसे देने हो तो हम कैसे भेज पाएं, और सबकी एक आइडेंटिटी हो. तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो किया इंडिया के इंडिया स्टैक ने. अब इंडिया स्टैक क्या है, इसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, बिकॉज अगर इंडिया में फिनटेक कुछ भी हुआ है तो इट्स बीन इंडिया स्टैक, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. तो इंडिया स्टैक के 3 कंपोनेंट्स थे जो उसके लिए फाउंडेशन रखते हैं. वो थे जनधन बैंक अकाउंट, जो सबके लिए खोले गए, गवर्नमेंट्स ने पिछले 15 सालों में सबके लिए खोला. आधार, जो बिलियंस ऑफ इंडियन के पास हो गया. मोबाइल फोन, नंबर, फीचर फोन और स्मार्टफोन, सभी कुछ आ गया सबके पास. तो इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी. और इसके बेसिस पे इंडिया स्टैक बना. अब इंडिया स्टैक पे ही आई थिंक बहुत ज्यादा अगर हम उसको डिटेल में ब्रेक करें, इसीलिए मैंने ये वाला विजुअल यूज किया है. अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो एक आदमी के पास फोन है, उसको पैसे लेने हैं, रखने हैं, लोन लेना है, कुछ भी करना है, सब कुछ स्मार्टफोन से हो सकता है. बट उसको करने के लिए आपको एक एपीआई चाहिए होती है टेक्नोलॉजी के टर्म में, कि भाई मैं वेरीफाई कर सकूं कि रवि सेठिया को लोन जा रहा है या लक्ष्मीपत जी को जा रहा है लोन. आप कैसे वेरीफाई करोगे? आप इतने दिन कार्ड्स की बात करते थे कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने दिखा दिया और काम हो गया. बट जब आधार आया तो आपको पता चल गया कि ओटीपी से वेरीफाई हो सकता है, कि अगर फोन नंबर आपका लिंक्ड है आधार से, तो इसका मतलब अगर आपके फोन पे ओटीपी भेजूं तो आप कंसेंट दे रहे हो कि भाई मैं रवि सेठिया हूँ या मैं फलाना आदमी हूँ, और ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया. तो पहला लेयर हो गया कि भाई वेरिफिकेशन हो गया. दूसरी चीज, इसी को आप डॉक्यूमेंट साइनिंग वगैरह में यूज करो तो आधार के नई यूज केसेस बनाए गए कि आप आधार से किसी चीज को, आपको डीएससी की जरूरत नहीं पड़ेगी. डीएससी जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कि एक हर आदमी 2-3 हजार रुपए खर्च करके एक डीएससी की पेन ड्राइव ले, उसको यूज करने के लिए कंप्यूटर लगाए. अब आपको साइनिंग करने के लिए ई साइन बना दिया गया. ये हो गया. उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे बड़ा इनेबलर आया वो आया यूपीआई, कि अच्छा आपको पैसे भेजने हैं तो आपके लिए एक एड्रेस दे दिया गया, आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी, इतना सारा बड़ा डिटेल नहीं देना पड़ा, और आपने बस एक यूपीआई दिया. और यूपीआई एक्चुअली फीचर फोन पे भी चलता है, उसको यूएसएसडी फॉर्मेट में बोलते हैं.
तो सबके लिए एक टूल बनाया गया, आधार, यूपीआई और डिजिटल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए थे, ये सारे को एपीआई फॉर्मेट में अवेलेबल बना दिया गया कि मतलब आपको कुछ भी करना है, आप एक एपीआई ले लो। अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी कुछ आइडिया शुरू करना चाहते हो, तो मैं बैंक तो तुरंत लाइसेंस नहीं ले सकता, बट आई कैन स्टार्ट अ कंपनी विच इज पार्टनरिंग विद बैंक, एंड बैंक को जाके बोले कि देखिए मुझे ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये चाहिए, क्या कहते हैं, एपीआई चाहिए, आप मुझे दे दो। और इतने दिन दिक्कत ये होती थी कि बैंक्स आपको एंटरटेन ही नहीं करती थी, क्योंकि उनके पास एपीआई बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं था। बट इंडिया स्टैक, ये किसने किया? ये एक टीम ऑफ वॉलंटियर्स ने शुरू किया था, आई स्पिरिट उसका नाम है। तो आई स्पिरिट की एक कम्युनिटी है जिन्होंने सोचा, और ये सब कुछ आधार जिन लोगों ने डिजाइन किया था उनके काफी लोग थे एक्टिवली, उन्होंने आगे सोचा कि कैसे आगे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस दिखेगा। एंड उसी में ये सारा जो विजन है आधार, ई केवाईसी का, यूपीआई का, ई साइन का, डिजी लॉकर का, एपीआई का, इसको अकाउंट एग्रीगेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इन सबको उन्होंने इमेजिन किया, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाए और ऐसा कर there's some noise coming, sorry. So इन्होंने ऐसा किया, आई स्पिरिट ने ये पूरा रोड मैप तैयार किया और बोला कि हमको क्या क्या लेयर चाहिएगा अगर मुझे किसी को फीचर फोन पे भी लोन दिलवाना है। तो आइडेंटिटी, पैसे ट्रांसफर की एपीआई, बैंक से डीलिंग कैसे होने वाली है, अकाउंट ट्रांसफर, जैसे अभी आप देखोगे तो एनईएफटी आरटीजीएस को शायद 24 घंटे कर दिया गया है, जबकि ये पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो ये सारा ग्रेजुअल चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली प्ले डेटा का, स्मार्टफोन का है ही है। दूसरा, रेगुलेटरी वाइज गवर्नमेंट ने इसको मैंडेट किया कि हर बैंक एक तरह से यूपीआई पे आए। छोटी से छोटी कोऑपरेटिव बैंक है वो भी यूपीआई पे आए। इट्स नॉट ओनली द बिग प्लेयर दैट शुड कम ऑन यूपीआई। एंड तो जो लक्ष्मीपत जी का क्वेश्चन था कि क्या ये रेगुलेटरी है या क्या ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, तो जैसे फिनटेक के पहले ग्राफ में मैं बता रहा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड कल्मिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम कमिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। अगर आरबीआई, सेबी, इल्डा ये लोग सपोर्ट नहीं करते इस रेगुलेशन को कि आप केवाईसी से इंश्योरेंस दे सकते हो, या फिर आप केवाईसी से डिजिटल केवाईसी से आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। सो इसमें सबसे ज्यादा एक जो एफर्ट लगा वो लगा इन वॉलंटियर्स का, आई स्पिरिट वाले वॉलंटियर्स का, पूरे इकोसिस्टम का, जिसने इंडस्ट्री ने और रेगुलेटर्स ने मिलके काम किया और बोला नहीं हमें ये अडॉप्ट करना है। अब इसके रिस्क भी थे ऑलवेज, जैसे आधार में सबसे बड़ी डिबेट चलती रही कि आधार सही है या नहीं है, प्राइवेसी के लिए सही है या नहीं है। बट एक बार 2015 से लेकर 18 तक हम लोग खुद आधार पे, क्योंकि हम सिस्टम्स बना रहे थे, हम कंफ्यूज रहते थे कि क्या हम इसको आगे ले पाएंगे, बिकॉज आधार, क्या पता आधार स्ट्रक डाउन हो जाए। देन हाउ डू यू वैलिडेट कि किसका आईडी क्या है, बिकॉज आपके लिए बैंक अकाउंट वेरीफाई करने की एपीआई नहीं है, या आइडेंटिटी वेरीफाई करने की ड्राइविंग लाइसेंस में, वोटर आईडी कार्ड में नहीं है, और ऐसा कोई आईडी था भी नहीं जो सबके पास हो। तो ये सारी चीज, ये सारे पिछले 5 सालों में हुई। ग्लोबली क्या हो रहा था एक बार पिक्चर लेते हैं। तो ग्लोबली, इंडिया में तो हमको पता होता है मोटा मोटी क्या हो रहा था, क्या हुआ है हमने देखा है। ग्लोबली क्या हो रहा था कि ऑलरेडी चाइना वाज लीडिंग इन दिस स्पेस, इन द सेंस कि चाइना हैड स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन आईडी, डेटा फ्लो एंड एवरीथिंग, and they were innovating a lot, and in the last 10 years probably they have innovated the most on anything that is related to data, right from making sure that data is generated, regulated, and it is made sure that, or wahan pe obviously the government control is far more higher, so privacy as a fundamental right does not exist. But the point is कि every person is getting this benefit of digitization, कि भाई आपके पास already data था, इंडिया में नहीं था, वो जियो के बाद आया। इंडिया में कैशलेस की बात नहीं होती थी, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद हुई। तो चाइना वाज देयर। देन अफ्रीका में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड ताला। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला कि किसी के पास फीचर फोन है अफ्रीका में, अब उसको हमें लोन देना, तो हम लोन फोन पे ही दे दे टॉक टाइम के फॉर्म में, या जैसे टॉक टाइम बैलेंस आता है उसकी तरह। तो वहां पे ये एम पैसा, वोडाफोन का आपने इनिशिएटिव सुना होगा। तो एम पैसा एक्चुअली अफ्रीका की एक कंपनी थी जिसने ये स्टार्ट किया, सफारीकॉम से रिलेटेड थे ये लोग। एंड व्हाट दे डिड इज कि आपको एक तरह से लोन आपके रिचार्ज, टॉक टाइम, बैलेंस के बेसिस पे आपके फोन पे ही मिल जाएगा, और आप फोन से ही पैसे ट्रांसफर वगैरह कर सको। तो ये सारी चीजें अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट हो रही थी, नाइजीरिया में, केनिया में, उधर प्लेसेस में। यूएस में फिनटेक की अगर हम बात करें, तो फिनटेक एज सच पेपाल था, आप ई कॉमर्स कर सकते थे, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क थे, बट अदरवाइज ये जो
इंक्लूसिविटी की प्रॉब्लम थी, ये कभी सॉल्व ही नहीं हो रही थी। वहां पे इसका फोकस ही नहीं था। वहां पे इट वाज लाइक ठीक है, आप वायर्ड सिस्टम से चेक से भेज रहे हो, 2 दिन बाद पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो एक्चुअली इवन टुडे जब कोविड आया तो यूएस को डिसाइड करना पड़ा कि पैसे भेजने हैं मुझे, तो किस बेनिफिशियरी को भेजूं, कैसे भेजूं। तो उनको एजेंसीज अपॉइंट करनी पड़ी जो वही पेपर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसके बाद पैसे भेज पा रहे हैं। जबकि इंडिया को जब करना था तो उन्होंने बोला वी नो कि ये लोग हैं जिनकी इनकम इसके बिलो है, दे आर डायरेक्ट बेनिफिट, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और आधार में सीधा, आधार लिंक्ड अकाउंट से सीधा पैसे चले गए। तो यूएस में ये बात कभी नहीं आई, वो हमेशा क्रेडिट कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलते रहे। और इंडिया में हम बात करें तो हमें आज भी पता है कि जब हम एक दुकान पे जाते हैं और हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की बात करते हैं तो 2% चार्ज की बात होती है कि आप 2% एक्स्ट्रा दे दो, बिकॉज इंडिया में कभी वो क्रेडिट कार्ड फॉर्मली एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, या दुकानदार वो 2% एक्स्ट्रा देना ही नहीं चाहते थे। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिफरेंस था कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड इवन यूरोप टू लार्ज एक्सटेंट। और वी वर मोर अलाइनिंग विथ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। आप समझ लो अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को, जहाँ पे लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, और उनको कैसे लाया जाए सिस्टम में। एंड दिस इज वेयर एक्चुअली वो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है वाली बात, ये सबसे ज्यादा इंडिया में हुई, इंडिया और इन एरियाज में हुई। और इन सबको ही एक दूसरे को लोगों ने क्रॉस लेवरेज किया। जब हमने उधार शुरू किया था तो देयर वाज दिस कंपनी इन यूएस कॉल्ड अफर्म, AFFIRM, and this was started by someone who had done PayPal in 2000s। उन्होंने क्या बोला कि हमको किसी को जज करना है एक क्रेडिट देने के लिए। तो आज की डेट में क्या होता है कि एक क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे इंडिया में हमारा सिबिल क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, और उसके बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। बट उसमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में थी। अब इसको दूर करने के लिए जब आप दूसरे साइड देखिए, सोशल मीडिया बहुत आ रहा था, तो लोगों ने बोला यहाँ पे बहुत सारा डेटा है आपके बारे में, ये समझने के लिए कि आपकी कैपेबिलिटी और आपके इंटेंशन होंगे क्या पैसे वापस देने के। तो लोगों ने बोला कि हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स का यूज करेंगे और किसी की भी प्रोफाइल बना लेंगे कि भाई ये बंदा, ये आदमी कैसा है, क्या इसके पास कैपेबिलिटी है पैसा देने की। मुझे सिर्फ क्रेडिट स्कोर जो कुछ ब्यूरोज देते हैं उस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। तो अफर्म जो कंपनी थी उसने बोला कि हम आपके फेसबुक प्रोफाइल को देखेंगे और उसके बेसिस पे आपको लोन दे देंगे, आप जहां पे भी ट्रांजैक्शन करो। उसी को लेके हमने इंडिया में बोला कि देखिए इंडिया में तो इतना फेसबुक 2015 में पॉपुलर भी नहीं था, ना उतना डेटा इंडिया में जनरेट हो रहा था। तो हमने बोला क्यों नहीं हम किराना स्टोर पे जाएंगे और हम किराना स्टोर पे बोलेंगे कि आपका जो आप परचेज करते हो सामान, क्या हम उसके बेसिस पे आपकी कोई प्रोफाइल बना सकते हैं। तो जैसे अगर आप पार्ले जी खरीदते हो जनरली और आप एक हाइड एंड सीक खरीदते हो सकता है मुझे कुछ इंडिकेशन मिलता है आपकी इनकम प्रोफाइल के बारे में। अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्ले जी अमीर आदमी भी पसंद करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, बट इस तरह के बहुत सारे डेटा पॉइंट होते हैं कि आपकी लोकेलिटी, आपकी फोन से लोकेशन किधर आ रही है, और मैं उससे क्या समझ सकता हूँ कि आप एक रिच लोकेशन में रह रहे हो या एक उतनी एफ्लुएंट सोसाइटी में नहीं रह रहे हो। इस तरह करके हजारों लाखों तरह के डेटा पॉइंट्स बनते हैं जिसके ऊपर ये फिनटेक बना हुआ है। तो ये जो डेटा की वेव आई, ये भी पिछले 5 सालों में आई। जब स्मार्टफोन पे ऐप आए तो ऐप्स ने डेटा जनरेट किया तो आपको उसके डेटा के यूज केसेस निकलने लगे कि हम उस डेटा को कैसे यूज करें। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरी टर्मिनोलॉजी में अल्टरनेटिव डेटा। तो ये तो हो गई लेंडिंग की बात बहुत ज्यादा। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो आप सोचिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है और एक कंपनी आपको हर एक को एक सेम किस्त पे सेम रेट पे इंश्योरेंस दे देती है। जबकि हो सकता है राहुल जी अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं जबकि निहाल जी नहीं चलाते हैं। अगर गाड़ी में एक सेंसर लगा हुआ हो जो ये बता सके कि कौन गाड़ी सही से चलाता है, किसकी रिस्क गाड़ी को डैमेज कर देने की ज्यादा है, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि किससे प्रीमियम ज्यादा लेना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका इंश्योरेंस पे। और इसके लिए आपको डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा? जब सेंसर लगेगा गाड़ी में, सेंसर लगेगा गाड़ी में या रोड पर, या ऐसी कंपनीज होंगी जो ये डेटा गैदर करके देंगी और बोलेंगी कि ये लीजिए इंश्योरेंस कंपनी, आपको हम राहुल जी का गाड़ी का डेटा दे रहे हैं कि वो गाड़ी अच्छी चलाते हैं या नहीं चलाते, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग यूज केस इमेजिन किए गए और जैसे जैसे डेटा ओपन होता गया, डेटा जनरेट होता गया, और अभी भी हमने मतलब ब्रॉडली
अगर हम देखें तो 10% लोग होंगे जिनका कुछ फॉर्म में डेटा जनरेट हुआ है सब्सटैंशियल, बट बाकी सारे 90% का डेटा अभी भी जनरेट होना है। तो फिनटेक में हमने अभी तक 5 से 10% ग्राउंड भी कवर नहीं किया है। एंड दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज कि आगे 500 मिलियन लोग अगर इंडिया में फिर से क्रेडिट स्मार्टफोन पे एक्सेस करेंगे, न्यू ऐप्स करेंगे, तो उनको सर्विसेज कौन सी कंपनीज देंगी, कैसे देंगी और क्या क्या कर सकती हैं कंपनियां। आज आपके हाथ में एक अगर स्मार्ट वॉच आपने पहन रखी है, वो आपके हार्ट बीट का डेटा जनरेट कर रही है। क्या आपका वो डेटा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यूज हो सकता है? उसको यूज करने में कितने प्लेयर्स का रोल लगेगा? एक कंपनी जो वियरेबल बनाती है यानी कि वॉच बनाती है, वो कंपनी हो सकता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस से टाई अप कर ले और बोले मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेचूंगी सीधा कस्टमर को, बिकॉज मैं उस कस्टमर के हाथ पे बैठी हुई हूँ दिन भर और मैं प्रीमियम प्लस माइनस करके बता सकता हूँ कि ठीक है। पर तो इसको हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। पूरे के पूरे एक्सपीरियंसेस का जो जनरल होता था कि हर किसी को सेम चार्ज दे दिया गया, आप बैंक में गए वही सर्विस सबको मिल रही है, जबकि हर आदमी यूनिक है। एंड दिस इज वेयर हम बोलते हैं कि हर बंदे के बारे में जब डेटा मिलता है तो देयर इज अ यूनिक फुटप्रिंट दैट वी आर जनरेटिंग। कैन ऑल द सर्विसेज बी पर्सनलाइज्ड टू यू? इफ आई नो कि राहुल जी टीपीएफ के मेंबर हैं, ऑलरेडी बहुत ट्रस्टेड है, मैं उनको 5 लाख का लोन सीधा क्यों नहीं दे देता? क्या उस डेटा को यूज किया जा सकता है? क्या एज अ कम्युनिटी डेटा को यूज किया जा सकता है? तो इस तरह से अवेलेबिलिटी बढ़ानी, सर्विसेज को पर्सनलाइज करना, उसको ब्रेक करना, डायनेमिक रियल टाइम करना। तो जैसे आपको फेसबुक ऐड दिखाता है एकदम पर्सनलाइज्ड, आप क्या सोचते हो, समझते हो या क्या इंस्टाग्राम पे ब्राउज कर रहे हो, उसके बेसिस पे सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्यूचर में ऐसी होंगी जो आपके लिए पर्सनलाइज होंगी। और इसके लिए जो सारा बेस है, आप सब समझ रहे होंगे कि वो है डेटा, स्मार्टफोन। और ये जितनी डेटा की टेक्नोलॉजी आएगी, चाहे कंप्यूटर, चाहे वेरिएबल, चाहे जो भी चीज वीआर आए, कुछ भी आए, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो जितना डेटा जाएगा। और यहाँ पे जब एक फ्यूचर को इमेजिन किया जाता है तो आपके पास प्राइवेसी और सिक्योरिटी की रिस्क आती है, रेगुलेटरी रिस्क आती है कि कोई कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो जाए कि वो रेगुलेशन से भी मतलब गवर्नमेंट के भी इससे बियॉन्ड हो जाए, गवर्नमेंट के परव्यू से बियॉन्ड हो जाए। और दिस इज वेयर वी गेट इनटू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो वो भी फिनटेक का ही पार्ट है। सबसे फैंसी पार्ट है आज की डेट में और सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी कितना बड़ी बन चुकी है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आज 5 करोड़ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, तो वो स्टॉक मार्केट को बीट करता है एक सेंस में, बिकॉज इतने लोग तो शायद स्टॉक मार्केट में भी कुछ इसी के आसपास नंबर है, विच इज अमेजिंग। और ये क्यों हो रहा है? तो एक तरफ जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो इंथुजियास्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें कंट्रीज के बाउंड्रीज में रहने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रांजैक्शन करूं, गवर्नमेंट को क्या लेना देना, मैं किसी भी कंट्री में कर सकता हूँ। यहाँ आरबीआई, अगर मुझे बाहर से पैसा लेना है तो मुझे आरबीआई से कंप्लायंस कराना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ बात कर रहे हैं। पैसा रेज करना है, मैंने टोकन दे दिए, मेरे को पैसा मिल जाना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है सेबी के पास जाके वो पूरा रेगुलेशन करने की। तो ये एक तरफ जो एक्सट्रीम्स हैं वो या कह दीजिए न्यू फ्यूचर है, वो इमर्ज हो रहा है, विच इज, और जहां पे रेगुलेटर को एक डिबेट हो रही है कि क्या हम करें। अगर हम अलाउ करते हैं तो क्या पूरा ट्रेडिशनल चीज जो फाइनेंशियल सिस्टम 200 सालों से एक जैसा चल रहा था कि एक बैंक होगी, एक सरकार होगी, एक मॉनेटरी बॉडी होगी, वो डिसाइड करेगी कि किसको क्या कैसे होना चाहिए, वर्सेस एवरीवन ट्राइंग टू हैव देयर ओन रेगुलेशन सिस्टम। तो ये फिनटेक का स्कोप है। अब हम आते हैं वापस से इंडिया पे। सो इंडिया में आप देखें तो फीचर फोन स्मार्टफोन यूजर्स प्राइमरली, अब कोविड के बाद सारे स्मार्टफोन की बात होगी, बट जब डिजाइन किया गया था इंडिया स्टैक को, वो कि भाई हर कोई चाहे वो असिस्टेड सर्विस मोड में हो, यानी कि आपने कस्टमर सर्विस पॉइंट देखे होंगे कहीं भी रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां बैंक नहीं पहुंच सकती, बट बैंक का एक सेंटर ऑफ सेंटर समझ लीजिए खोल दिया जाता है, जो बोलता है कि मेरे पास आधार की मशीन है, आप आओ, अंगूठा लगाओ और पैसे निकाल लो या पैसे जमा करा दो। तो वो हो गया असिस्टेड मोड, उसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। या यूपीआई से स्मार्टफोन या फीचर फोन से हर कोई ट्रांजैक्शन कर सके, तो किसी को असिस्टेंट की जरूरत पड़ी और बाकी लोगों ने सेल्फ सर्विस मोड में कर लिया। एंड ये सब कुछ डिजाइन किया गया जो हमने देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल 2G 3G 4G का रहा है। वी आर स्टिल वेटिंग कि 5G क्या लाता है। और दिस इज वेयर देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑन द मेटावर्स, जो आपने लेटेस्ट फेसबुक की रीब्रांडिंग मेटा पे सुनी होगी। विल टॉक मोर ऑन दैट इन Q&A।
इंडिया में जो सबसे बड़ा अगर इनेबलर की बात हो रही थी फायर की, तो अगर सिंगल पॉइंट बोला जाए तो वो है यूपीआई। इमेजिन कि आपके पास 5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूपीआई पे, $100 बिलियन की वैल्यू से ज्यादा के एक मंथ में, यानी सारे बिल पेमेंट, सारी पेमेंट्स और इतने सारे ट्रांजैक्शंस ऑल हैपनिंग ऑन यूपीआई। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग नंबर बिकॉज ये सारी चीजें आपको सबको पता है। वी डोंट नीड टू गो इनटू द चार्ट, इट हैज बीन लाइक हॉकी स्टिक ग्रोथ जो हम बोलते हैं स्टार्टअप के फेज में, कि 2016 में यूपीआई शुरू हुआ, कुछ भी नहीं था, और आज बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में, इंडिया हैज वी से लीपफ्रॉग्ड क्रेडिट। लीपफ्रॉग्ड का मतलब कि क्रेडिट कार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर आया ही नहीं, और हमारे पास ऑलरेडी यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड के इनोवेशन हो रहे हैं। सो पीपल आर थिंकिंग ऑफ दीज यूज केसेस विच इज ऑल पावर्ड बाय इंडिया स्टार्ट। नाउ लेट्स कम टू द मीट ऑफ दिस, कि इसकी वजह से क्या हुआ है। इसकी वजह से ये इतने सारे सेक्टर्स बने हैं, इतनी सारी कंपनीज बनी हैं, और जिसमें से हर कोई अगर आप उठा के देखोगे नाम, तो यू विल आइदर कॉल देम अ यूनिकॉर्न और अ सुनिकॉर्न। सुनिकॉर्न मतलब जो जल्दी से यूनिकॉर्न बनने वाली है। और हर कंपनी की वैल्यूएशन इसीलिए इतनी बड़ी हो रही है कि अरे सब कुछ तो ब्रोकन है इंडिया में। आप बैंक में जाओ, एक स्लिप देते हो, एनईएफटी कराते हो, चेक कराते हो, 2 दिन बाद पैसा होता है, और वो भी तब जब आपके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटी। फिर भी मेरा फ्रेंड है जिसको पासबुक अभी भी अपडेट कराने जाता है, और मैं बोलता हूँ अरे तुम्हारे पास मोबाइल ऐप है, तुमको पासबुक की क्या जरूरत है। जबकि अगर आप देखो तो ये एक मेंटालिटी में है हमारे कि पासबुक तो होना ही चाहिए यार, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। मेरे ही पापा हैं, वो बोलेंगे पासबुक अपडेट कहाँ है, आपके पास नेट बैंकिंग है, आप डाउनलोड कीजिए। ये हमारी माइंडसेट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबली अपर मिडिल क्लास सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, बिजनेस कम्युनिटी, सबसे एफ्लुएंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। और यही आप सोचो बॉटम टीयर में जाओगे तो कितना कुछ भी नहीं है, उनको तो भरोसा भी नहीं है कि अगर बैंक से पैसे कटे तो एसएमएस सही आया नहीं आया। इतने स्कैम्स हो रहे हैं, तो कौन फ्रॉड की चेक करेगा, कौन रिस्क की चेक करेगा। तो एवरीथिंग, एक भी चीज अगर आप उठाओ और उसके लिए सॉफ्टवेयर बना के आप उसमें ऑटोमेशन और एफिशिएंसी ला दो, दैट इज व्हाट फिनटेक इज अबाउट। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, बैंक वाले आधे टाइम आपको कहेंगे कि लिंक नहीं है सर, तो वो तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई या सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच है, ऐसी प्रॉब्लम। वो आज भी जो 4 बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, वही लोगों का सिस्टम चल रहा है। देयर इज नो न्यू टेक कंपनी जो बैंक का सॉफ्टवेयर बना के देती है, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में चीजें कभी बाहर आई नहीं है। तो ये सारी चीजें 50 साल से एक मोनोपोली वे में कंट्रोल हो रही थी, इन सबको डेमोक्रेटाइज करके छोटे छोटे पीसेस में स्टार्टअप पिक कर रहे हैं। बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, सारे तरह के बिल आपके पास आ गए, जो अब कोई भी ऐप अपने आप में अपने फ्लो में लगा सकता है। उसको हम बोलते हैं, आप हमारे उधार ऐप पे आओ, आप चाहो तो कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो। और इसी तरह कहीं पे भी आप जाओ, किसी दुकान में आपको कटिहार का बिल पे करना है, मैं कटिहार में हूँ अभी टेम्परेरी, तो आप कटिहार का भी बिल पे कर सकते हो बैंगलोर से बैठे। ये 7 साल पहले, सॉरी 7 साल पहले पॉसिबल नहीं था। So this is a culmination of all these factors, and then startups picking up all these sectors and breaking it down कि अच्छा बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा कि वो केवाईसी का वीडियो केवाईसी कैसे हैंडल करेगी। तो देयर वेर कंपनीज लाइक आईडीफाई व्हिच सेड कि अच्छा ठीक है, हम है ना ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक एपीआई फॉर्मेट में देंगे। तो अगर आप टेक वाइज सोचो तो एवरीथिंग डेटा, एवरीथिंग एपीआईफिकेशन ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट इज फ्यूलिंग द फिनटेक फायर। रेगुलेशन वाइज देखो तो आरबीआई, एनपीसीआई, दे हैव ऑल डन अ ग्रेट जॉब इन इंडिया कि भाई हम प्रोग्रेसिव हैं इनोवेशन की साइड। इवन ऑन क्रिप्टो आप देख रहे हो रोज बैक एंड फोर्थ होता रहता है, अरे क्रिप्टो खराब है, सही है, क्योंकि इतना बड़ा कंसल्टेशन चल रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में डिबेट है। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम लूज आउट नहीं कर जाए, और इसीलिए एकदम स्ट्रेट अवे इलीगल बोल के बैन नहीं हुआ है या कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो इंडिया डजंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट। लेट मी पिक so I think we can have one round of Q&A for timing, and then let me pick all these sectors and explain what these companies have done. So, yes, sir. No, go on, Nehal. So if you're open for questions, I mean, anyone has any questions, we can start with that. If no one else has, then I had just one for Ravi. You can start, sir. This payments bank, Raviji, this payments bank, which is obviously combination of digital plus physical infrastructure, जहाँ पे वो मशीन लगाता है और it reaches to rural places.
So what do you see those players actually see? Rest of them are all, let's say, app based. App चाहिए. ये तो without app also payment bank का service जो है, which is also started around 2015-16, RBI ने start किया था. What is your thing around it now? Payment banks also trying to do digital plus the physical stuff. So इसके बारे में what is your view? Because I see 2-3 banks doing well, but not all of them. It's a Pine Labs है, it is more city oriented. जैसे है, they are reaching to the most deepest part of the country. Right. तो इंडिया में जब हम फिनटेक स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो एक तरफ है बैंक्स जो लीडिंग बैंक्स हैं और एक तरफ सबसे दूसरे एंड पे है एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो कि रूरल एरिया में काम करते हैं, ग्रुप में लोगों को लोन देते हैं, फिजिकल टच पॉइंट होता है उनका. इस बीच में कई सारे स्पेसेस बने एनबीएफसीज के ओरिएंटेड, एनबीएफसी एमएफआई हो गया, माइक्रो फाइनेंस. और यहाँ पे रेगुलेशन की बार बार बात आई कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को दे सकते हैं लाइसेंस, पेमेंट बैंक एज अ न्यू एंटिटी जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो लेकिन उसको एक बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया जाए तो क्या उससे एक ट्रस्ट बनेगा. बट क्या वो डिपॉजिट ले सकता है? तो ओके ले सकता है, बट बहुत छोटे अमाउंट तक ले सकता है. एनबीएफसीज में डिपॉजिट का कंसेप्ट नहीं था, मतलब डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग दो तरह की होती है, बट प्राइमरली ये था कि एनबीएफसी सिर्फ लोन का काम करेगी एंड दे विल बी इनेबलर्स जिनको बैंक सर्व नहीं कर पा रही. तो हमेशा रेगुलेटर की कोशिश रही है कि हर तरह का स्पेक्ट्रम हो. हम कंज्यूमर लेंडिंग ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, बट सेम थिंग अप्लाइज टू एसएमई लेंडिंग, एमएसएमई लेंडिंग, है ना. और वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का. स्पेशली कोविड में जितने रिलीफ मेजर्स आए थे वो एमएसएमई लेंडिंग पे आए थे. पेमेंट्स बैंक पे बात करें तो इट वाज आल्सो स्ट्रक्चर जिसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लेके बनाया गया था, बट इसमें बहुत से ट्रिक रहे. इनिशियली आप याद करो तो 2015-16 में वॉलेट्स का बहुत बड़ा कल्चर था. फ्री चार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम, एवरीवन वाज अ वॉलेट. बाद में सडनली गवर्नमेंट ने जब यूपीआई लॉन्च किया तो ये वॉलेट एक बार में गायब हो गए थे. मतलब सबकी प्रॉब्लम हो गई कि भाई हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी आवर बिजनेस मॉडल, बिकॉज अगर यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या होगा. या क्रेडिट बाय नाउ पे लेटर, उधार जैसे प्लेयर्स या और प्लेयर्स आ गए इकोसिस्टम में, जेस्ट मनी आ गया तो सबको क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर लेंगे. तो पेमेंट बैंक एज सच एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था. अभी फिर क्या हुआ, वॉलेट से एक तरह से आप देखो तो हर ऐप का खुद का वॉलेट रिवाइव भी हुआ. नाउ दैट वॉलेट इज अ मिक्स ऑफ आइदर अ पे लेटर सर्विस और एन एग्जिस्टिंग वे वेयर कि भाई नहीं आप मेरा पैसा रखो. तो वॉलेट्स आर रेगुलेटेड इन सर्टेन केसेस. इट इज कॉल्ड अ पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट. तो व्हेन वी टॉक ऑफ अ गिफ्ट कार्ड, जैसे आपको अमेजोन का 100 रुपए का गिफ्ट कार्ड दिया जाता है, दैट इज रन बाय अ कंपनी कॉल्ड क्विक सिल्वर, और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है कि आपके पास आप 1000 रुपए का एक ऑलरेडी पेड इंस्ट्रूमेंट किसी को दे सकते हो. उसका फायदा क्या है कि आप लो केवाईसी के साथ आपने किसी गरीब को भी अगर अमेजोन का वाउचर दे दिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक अमेजोन पे ट्रांजैक्शन कर लेगा विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, विदाउट हैविंग अ डेबिट कार्ड, विदाउट हैविंग यूपीआई आईडी इटसेल्फ. ठीक है. एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वेर अ बिग प्ले इन आवर इकोसिस्टम. सो पीपीआई और पीपीआई को अपग्रेड करके एक लाइसेंस देने के फॉर्मेट में इन अ डिपॉजिट फॉर्मेट पेमेंट्स बैंक लॉन्च किए गए थे. अभी पेमेंट्स बैंक डाइसी है, इसलिए सम ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड बैक देयर लाइसेंसेस कि भाई हम पेमेंट बैंक नहीं चला रहे बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. उसमें इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है. आई वाज टॉकिंग अबाउट योर क्रेडिट कार्ड मशीन जिसपे 2% देना पड़ता है. तो लोग कहते हैं कि पेमेंट्स में पैसा नहीं है. पैसा क्यों नहीं है? मैं निहाल जी को 5 रुपए भेजता हूं, मेरे को कोई बोले 1 रुपया चार्ज होगा, मैं नहीं भेजूंगा, मैं 5 रुपया कैश में दे दूंगा. हमारे यहाँ जब भी कैश एज एन अल्टरनेटिव है या कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव है जहां पे पैसे मैं फ्री में दे सकता हूँ, चार्ज नहीं लग रहा, तो आई विल चूज दैट. और वो स्मार्ट भी है, ठीक है, मैं करूंगा, व्हाई विल आई नॉट बाईपास दैट. जबकि तो ये हमारी कैश डोमिनेंट इकोनॉमी की वजह से, प्लस हमारे पास जैसे आईएमपीएस और इतने सारे पेमेंट मोड्स हो गए तो उसमें वो कॉस्टिंग का सही से बैठ नहीं रहा मैनर. एंड दिस इज वेयर यू सी द लाइक्स ऑफ कंपनीज लाइक भारत पे कम इन एंड से कि यार हम तो फ्री में पेमेंट एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे. और उन्होंने एक ही बार में मतलब यूनिकॉर्न बना दिया. एक साल में सारे मर्चेंट्स को बोला हम तो फ्री में देंगे, वाइल पेटीएम वाज थिंकिंग कि हम तो है ना सबसे चार्ज भी ले लेंगे, थोड़े दिन फ्री देंगे, थोड़े दिन पेमेंट ले लेंगे. तो बिजनेस मॉडल ही ट्वीक हो गए. तो पेमेंट बैंक एज सच इज स्टक इन अ लिम्बो कि वो कहाँ जाएंगे, बिकॉज पेमेंट बैंक के बाद की चीज आ चुकी है विच इज नियो बैंकिंग. एंड नियो बैंकिंग में क्या हो रहा है कि आप एचडीएफसी बैंक हो, बट एचडीएफसी बैंक हर किसी के पास नहीं पहुंच सकती, या एचडीएफसी बैंक का ऐप मुझे अच्छा नहीं लगता, या वेबसाइट अच्छी नहीं लगती. तो एक कंपनी आ गई, मान लीजिए जुपिटर ले लीजिए या यूनी ले लीजिए, उसने बोला
हम आपको एक ऐप देंगे जो आपकी बैंक जैसा ही काम करेगा, पीछे एचडीएफसी बैंक ही होगा, लेकिन हमारा डिजाइन बहुत अच्छा होगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। मतलब पूरे स्टार्टअप में सबसे कीवर्ड ही ऑटोमेशन और एफिशिएंसी है आईटी के सेक्टर के हिसाब से। अगर हम बेटर, फास्टर, चीपर कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज अ स्टार्टअप आइडिया जो वर्ल्ड अडॉप्ट करेगा। तो ऑटोमेशन और एफिशिएंसी के हिसाब से जब कोई बैंक कोई ऐप बना सके एचडीएफसी बैंक के ऊपर और बोले मेरा इंटरफेस इनसे बेटर है, इनसे एफिशिएंट है, तो कस्टमर उसके लिए पे करेगा नहीं करेगा वो एक डिबेट है, बट मैं डेटा गैदर करके कुछ बिजनेस बना लूंगा। एंड दिस इज वेयर नियो बैंकिंग इज कमिंग अलोंग एंड दे आर सेइंग कि अरे आज आप टीडीएस फिल करते हो, टीडीएस की साइट पे जाओ तो यू हैव टू फिल इन आपका डिटेल्स फिर से, हर बार कोई सेव नहीं होता आपका डिटेल कि भाई मेरा क्या कहते हैं वो टैन नंबर क्या है या एड्रेस क्या है, आप बार बार रीफिल करते हो। जबकि एक रेजर पे का टीडीएस फॉर्म है, रेजर पे बोलता है अरे आपका टीडीएस वीडीएस चालान हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देंगे जब भी एक ट्रांजैक्शन आएगा। या ओपन करके एक बैंक है जो आपके करंट अकाउंट पे बैठ रही है और आपके स्टेटमेंट को एडवांस एनालिटिक्स के फॉर्म में दिखा रही है कि अरे ये तो आपने सैलरी दिया था, ये आपने वेंडर दिया। जबकि आज आप क्या करते हो, उस ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करते हो या लिखते हो टैली में, फिर उसको बोलते हो कि यार ये तो मेरे सैलरी पेमेंट है। जबकि टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट कि ये क्या है, राइट। सेम वे फॉर इन्वेस्टमेंट, किसकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल कैसी है, मैं उसके बेसिस पे उसको शेयर रेकमेंड कर दूं। दिस इज वेयर वी आर गेटिंग इनटू वेल्थ टेक और इन्वेस्टमेंट टेक। आज की डेट में तो सिर्फ ये इनेबल किया गया है कि मुझे बिना ब्रोकर के बात किए फोन पे ऐप पे मैं ट्रांजेक्शन कर लूं, बट रोबो एडवाइजरी आ रही है जहां पे हम ऐसा कर पाएंगे कि आप लीजिए, आपके हिसाब से हमने आपको रेकमेंड कर दिया, स्टॉक ऑलरेडी परचेज भी हो गया और आपका पैसा आपको, आपने बोला 7% पे ग्रो हो या 17 पे सेट कर दिया और वो ग्रो हो रहा है शायद। ऑब्वियसली रिस्क वगैरह बता दी जाएगी, आप बैठ के स्टॉक मार्केट देखने नहीं लगोगे कि अरे रेट गिरा कि ऊपर हुआ। उसमें भी आप ऑलरेडी, अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो, आप देखोगे इतने ऐप्स आ रहे हैं विच आर ऑल डेटा हैवी कि ऐसे ऐसे एनालिसिस को सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं कि आपके लिए रिलायंस जैसी कंपनी को समझने के लिए 5 पैरामीटर दे दिए, बिकॉज बैलेंस शीट की सारी एनालिसिस हर कोई नहीं कर सकता। दिस इज वेयर वी आर नाउ मूविंग इनटू अ स्पेस कॉल्ड कि एवरीवन is empowered to do a lot more and everyone can be a creator or an influencer or an entrepreneur कि सब कुछ है मेरे पास, मैं इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं उसका ज्ञान भी बांट सकता हूँ। अब उसमें रेगुलेशन कैसे प्ले करेगा, एंड दिस इज अ कंसर्न एज ऑफ डेट आरबीआई हैज कि इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स बन गए, हर कोई, नो वन इज, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, बट आई ओन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेरे पास 5 लाख फॉलोअर्स हैं, मैंने जाके बोला कि कल रिलायंस गिरेगा, मंडे है, और 5 लाख लोग इन्फ्लुएंस हो गए, और मैं तो बोल रहा हूं मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहा हूं, तो कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। हाउ विल सेबी कंट्रोल दिस कि भाई ये मैनिपुलेशन नहीं हो मार्केट का। सेम फॉर क्रिप्टो, राइट, सेम थिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फाइट चल रही है, जबकि एक तरफ लोग बोल रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी भी तरह बना सकते हैं, मेरा सोशल मीडिया, मेरा वायरलिटी, पैसे स्पेंड करके बना सकता हूं। तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डिबेट दैट इज गोइंग टू कम अप। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन इज कि जो भी लोग नॉन टेक बैकग्राउंड में भी है, उनको अब टेक समझना जरूरी हो गया है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट देयर रोजी रोटी, अगर हिंदी में बोलूं तो। अगर वो इस चीज को बोलते हैं कि नहीं मैं तो फाइनेंस वाला हूं, मैं भूल जाऊं टेक्नोलॉजी को, वो बहुत गलत हो जाएगा। हम टेक वाले अगर हम पॉलिसी और रेगुलेशन का इंपैक्ट भूल जाएं कि व्हाट इज इट गोइंग टू प्ले आउट, तो देन वी विल नॉट बी अहेड ऑफ द स्पेस। एंड दिस इज वेयर, और इनोवेशन ऑब्वियसली, तो जो फिनटेक के 4 पार्ट्स हैं वो बार बार इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रेगुलेशन, चारों पे नजर रखनी पड़ती है। आधार पे, मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग अप फॉर 3 years आई वाज कॉन्स्टेंटली अप विद द जजमेंट्स कि क्या चल रहा है, क्या आधार को स्ट्रक डाउन किया जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग इन द कम्युनिटी, क्या बोल रही है। तो मैंने एक जगह सुना कि ओके 80% 90% लोगों को तो आधार दे दिया गया, अब क्या इसको स्ट्रक डाउन किया जाएगा, राइट। तो एवरीवन हैज देयर ओन थॉट्स, पीछे क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, सब समझिए, देन यू कैन बी अहेड ऑफ द कर्व। क्रिप्टो में है तो एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट क्या इंडिया बैन करेगा तो उस दिन शॉर्ट करना है नहीं करना है, ठीक है। या सो आई थिंक काफी डिटेल में उधर आंसर हो गया, बट encourage any more questions so that you get what you are wanting rather than me just saying कि ये चीजें हो रही है। I have one. Alright. I have one, Ravi. Can I go ahead? Yeah, sure. So Ravi, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला जो डेटा पॉइंट है. Based on the data points, you'll decide a consumer behavior, and you will be
offering the services, right? Right. तो इसमें एक मुझे प्रॉब्लम ये दिखता है, आई एम एसोसिएटेड विद द आईटी साइड एंड बैंकिंग Okay. लास्ट 15 ईयर। Okay. तो कंसर्न यहाँ पे ये दिखता है, जो स्मॉल लेवल, आई एम नॉट सेइंग इन द कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टार्टअप्स हैं हु आर जस्ट स्टार्टिंग इन द फिनटेक इंडस्ट्री, हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट, बिकॉज इन बैंकिंग साइड क्या होता है कि measure of the issues, okay, and regulators, they are very much concerned with the security part. Very good question, Vijay ji. And So- how you are taking care, if you can touch base, आप उड़ान में आप कैसे उधार में आप कैसे सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू करके आप रखते हो, इफ यू कैन एक्सप्लेन दोस पैरामीटर्स इट विल बी ग्रेट। राइट। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समथिंग विच इज क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। और उधार में या कोई भी फिनटेक में या कोई ऐप यूज करते हुए भी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि क्या आपका डेटा सिक्योर है। सच्चाई इसकी ये है कि कहीं पे भी डेटा सिक्योर नहीं है अगर एक बार वो आपके प्रीमाइसेस से बाहर है तो, विच इज एनीथिंग ऑन क्लाउड इज इनसिक्योर। ठीक है, Right. चाहे आप फेसबुक गूगल की बात कर लो, चाहे आपकी बैंक की बात कर लो, चाहे आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइडर रेलीगेयर जैसी कंपनी की बात कर लो, सब आप उतना दूर मत जाइए, हाँ, टॉक हाँ, अबाउट आधार इटसेल्फ। आधार में हाँ। 5 लाख यूजर्स के डेटा जहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स है, राइट, एंड दैट विल बी ए हेल्प। राइट। तो इसमें देखिए मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि कुछ डेटा ऐसा है जिससे लीक होने से शायद फर्क नहीं पड़ता, और कुछ डेटा ऐसा है जो लीक हो गया तो देयर इज नो रिकोर्स इन द सेंस आपका बायोमेट्रिक का डेटा लीक हो गया और इफ समवन इज एबल टू लेवरेज दैट एज आइडेंटिटी फॉर अदर पर्पसेस, तो इसका कोई रिवर्सिबल मैकेनिज्म नहीं है, बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर चेंज किया जा सकता है, पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, नया इशू हो जाएगा, बट आईडी वाला जो पार्ट है बायोमेट्रिक डिटेल्स या कोई भी ऐसी सेंसिटिव डिटेल, एंड दिस इज वेयर गवर्नमेंट इज नाउ कमिंग अप विथ अ डेटा एम्पावरमेंट बिल, विच इज कि भाई क्या एप्स क्या स्टोर कर सकती हैं, क्या स्टोर नहीं कर सकती हैं, कहाँ रख सकती नहीं रख सकती है। ऑन अ ब्रॉड लेवल इस सॉल्यूशन का अभी तक हमारे किसी के भी पास कोई तोड़ नहीं है। बैंक्स के पास जब एक फिनटेक जाती है तो सबसे बड़ा टाइम जो लगता है वो इसी चीज को कन्विंस करने में लगता है कि आवर डेटा इज सिक्योर। जो बैंक टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उससे 10 गुना एडवांस टेक्नोलॉजी है स्टार्टअप्स के पास, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज बैंक्स लेगेसी सिस्टम्स यूज कर रही है जिसपे कोई प्रीमियम लगा के उनको चार्ज कर रहा था, जबकि स्टार्टअप्स न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सस्ती यूज कर रहे हैं बट फ्यूचर प्रूफ है या फ्यूचर की है, तो आपको ये कंसर्न नहीं है कि उतना सिक्योर नहीं है, दोनों एक्चुअली सिक्योर है। नाउ इट्स अप टू द माइंडसेट कि अब हम फाउंडर्स हैं, मान लीजिए हम लोग टेक्नोलॉजी साइड से आते हैं, वी अंडरस्टैंड कि यार ये चीज ध्यान देनी जरूरी है। इफ समवन एल्स हैज कम इन और उसने इस पे फोकस नहीं दिया, तो जैसे एवरी कंपनी नीड्स टू हैव सीईओ सीटीओ या चीफ सेल्स ऑफिसर या सीबीओ बोल लीजिए, थोड़े दिनों में एवरीवन विल नीड टू हैव अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। वो कंपल्शन बन जाएगा आपका, बिकॉज आपके बिजनेस को पेनलाइज किया जाएगा अगर जरा सा भी डेटा लीक हुआ तो। वो तो बैंक भी होते हैं, इट्स नॉट ओनली बैंक्स में होते हैं बट स्टार्टअप्स में नहीं होते, राइट? स्टार्टअप्स में लेकिन हाँ, रेगुलेटर्स, एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसके साथ, जब आप बोलते हैं कि रेगुलेटर्स बैंक आर आंसरेबल टू आरबीआई, राइट, ओके, तो रेगुलेटर्स जो दे आर कीपिंग एन आई ऑन एवरी ट्रांजैक्शन और एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये स्टार्टअप पे कितना होता है, आई एम नॉट श्योर। startup पे so the IT so on a tech startup IT act applies, then if I am under the specific regulation, so let's say हम डिटेल लैंडिंग ऐप है, उन पे रेगुलेशन की बात अभी चल रही है कि वी हैव टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये लेटेस्ट कल परसों का मूव है विच इज गोना कम। तो इस तरह ये क्या होता है, इनोवेशन और रेगुलेशन ये दोनों में भी कैट एंड माउस गेम चलता है कि भाई पीछे आप रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट करोगे, इनोवेशन और तेज होने की कोशिश करेगा, फिर आप उसको कंट्रोल करोगे, बिकॉज समवन, इनोवेशन का काम है लूपहोल फिगर आउट करना बहुत हद तक, और रेगुलेशन का काम है कि उसको ऐसा देखना ताकि कोई बड़ी मिस्टेक नहीं हो, छोटी मोटी होती रहेंगी। तो इतने सालों तक, अभी हमने 5 साल में 2000 लेंडिंग एप्स आ चुके थे मार्केट में, हम अपनी सेक्टर की बात करें तो, और उसमें अगर आप देखो तो ब्रॉडली वो फिनटेक के हिसाब से साइज ऑफ लोन के अमाउंट से बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तो कभी ध्यान नहीं गया आरबीआई का। बट कोविड वाले टाइम देखा गवर्नमेंट ने, सडनली चाइना से एक इन्फ्लक्स आ रहा है, कुछ शेडी चीजें हो रही है, सुसाइड्स हो रहे हैं, तो उन्होंने सबको टाइट किया। एंड ऑब्वियसली जब ऐसी चीज होती है तो जेन्युइन प्लेयर्स हों, उस पर भी गाज गिरती है और वो भी फंसते हैं कि अरे यार 4 पेपर वर्क और करना पड़ गया, मुझे भी मेरे पेमेंट गेटवे को, गूगल को, आरबीआई को जवाब देना पड़ गया कि हम कौन है, क्या है, हम जेन्युइन है या नहीं है।
Makes sense. So this I'll just- debate, yeah. So I want to add to Vijay's question, and maybe I want to try to answer this a little bit different perspective, Ravi, if I may. Yeah. So Vijay, data security is the hottest topic across the world, and there is no way anybody can say protect kar sakte hain. And there are people, and as we know that data is so valuable, people are trying to gather as much as possible, try to get this data. तो चाहे उधार उनका रवि जी का ऐप हो या किसी और का भी ऐप, इंक्लूडिंग पेटीएम, वी हैव सीन इंस्टेंसेस ऑफ पेटीएम वेयर पीपल डेटा वाज थेफ्ट, राइट? और एक Exactly. बार नहीं, बार हो चुका है। Multiple times. Correct. Yeah. Right? तो डेटा जो है ना वो उसका चोरी करना, आई थिंक इट इज इन बेनिफिट फॉर पीपल हु स्टील दैट, बट अभी आप कितना भी करो, यू आर ऑलवेज अंडर, मतलब एक रहेगा कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। So that is the problem of entire fintech space. There is no answer, right? चाहे 256 अभी खाली That's a concern actually. वो इंडिया में क्या होता है, आप 500 रुपए दे दो किसी को, यू साइन इन माई अकाउंट, और 500 रुपए दे दो, आपके फोन का सारा एक्सेस दे देगा, एंड ही विल बी नॉट अवेयर। हमको ये ऐप डाउनलोड करते हैं, व्हाट विल से ओके, उसमें आपके मीडिया चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चले जाते हैं, आपके व्हाट्सएप के बैकअप भी चले जाते हैं उसमें, दोज पीपल आर यूजिंग दोज इन अ रॉन्ग वे। So that's a major concern around the world, as Lakshmipatji you rightly mentioned. But yes, that's a concern. That's a big concern. Yeah. So it is basically, if you see Vijay, it is basically between balancing out the facilities what you want and how much able to compromise. For example, if you are a person that I am not going to compromise 0% on my data, then my view is that stay away from fintech apps. Right. Correct. But then you Not lose only lose fintech out on the Not only facilities. fintech. Not Lakshmipatji, not only fintech, all the apps, any detail, yeah. No, all the apps. All the apps. Reason is not that all the see, apps also. Just a correction. Not all the app also. You have to stop app, using desktop, smartphone also. Right. Stop using internet as well. Today, Yeah. today on press of my button, I can get millions of dollars transferred in matter of 2-3 hours. Okay. Correct. I can do that and I can get it. But उसमें so that facility I have it. अगर वो बात follow नहीं करूँगा, I will spend 3 to 4 days going bank and negotiate करो, price करो. I think हमारा एक और member है पीयूष जी डागा, उनका forex का ऐसा है. So there are a lot of, basically see the technology का compromise, how much compromise you are ready to do it. So Facebook use करते हो, you are compromising your data, right? For the benefit of all your social happiness. उसको चोक बंद कर दो, तो you might not happy as people were happy earlier. क्योंकि connection नहीं हो रहा है. It is basically, there is no right answer. I think it's choice what we have it. We as individual users have it. हम क्या compromise करना चाहते हैं. I totally agree, Lakshmipatji. What you said, I totally agree. So we have to balance it. हमें क्या लेना है in the cost of what? Yes. हाँ, तो इसीलिए जो सबसे बड़ी नीड चल रही है, अभी आपने अगर जी बिजनेस की कई सारी डिजिटल एप्स की, लोन एप्स की स्टोरी सुनी होंगी, हफ्ता वसूली करके उन्होंने प्रोग्राम चलाया था। अब देखिए, अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोन पहले भी होते थे, इनफॉर्मल होते थे, दबंगों से ही रिकवर किए जाते थे कि आप गए, लाठी के नाम पे ले लिया, है ना? और उसमें वो प्रॉब्लम पहले थी। आज डिजिटल ऐप है, उसमें भी यही हो रहा है कि अरे उसने मेरे कॉन्टैक्ट को फोन कर दिया, उसने मेरे जान पहचान वाले को फोन करवा दिया, मेरे फोन का डेटा हैक कर लिया। अगेन, तो क्या होता है, अवेयरनेस की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एक आम आदमी को ये दिखा दिया जाए अगर कि उसका ट्रस्ट ही ब्रोकन है। अरे आज मतलब शायद हम लोगों के कई लोगों के पेरेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि हमें नेट बैंकिंग लेनी नहीं चाहिए, या क्रेडिट कार्ड लो ही मत, या डेबिट कार्ड लो ही मत। क्यों? क्योंकि डर बैठा हुआ है। अब ये जो बैलेंसिंग पार्ट है कि यार आप उस पर लिमिट कितनी लगवाओ, क्या ऑथेंटिकेशन, क्या आपने समझा रखा है कि ओटीपी नहीं शेयर करना है, क्या ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, बच्चों से लेके। मैं आपको एक ऐप नया जो टीनेजर में आ रहा है वो फैम पे है। तो ये इनोवेशन आ रहा है कि क्या बच्चों को शुरू से पर्सनल फाइनेंस बताया जाए, क्या बच्चों को साइबर सिक्योरिटी पहले से बताया जाए। तो फ्रॉम आईटी पर्सपेक्टिव तो साइबर सिक्योरिटी से बड़ी बेट लेने के लिए आज कुछ भी नहीं है। आपको पैसा लगाना है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, लगाओ, बट किस पे लगाओगे वो आपकी चॉइस है। उससे ज्यादा ग्रोथ किसी की नहीं होने वाली, ठीक है? फिनटेक में और भी ज्यादा, हेल्थ टेक में जाओगे तब और भी ज्यादा, कि आपकी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, इमेज, इलाज, सारी चीजें, क्योंकि इंडिया खुद नेशनल हेल्थ टेक ला रहा है। अब आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट देखे होंगे, उस पे UHID लिखा हुआ था और लोग उसको धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं, जबकि दैट इज समथिंग लाइक योर आधार नंबर, जिसको सिक्योर रखना था। इवन आधार नंबर पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्चुअल आईडी जो बनाया गया, बट गवर्नमेंट हो चाहे लोगों ने, वो सब ने पहले आधार तो शेयर कर दिया, अब वो वर्चुअल आईडी मीनिंगलेस हो गया। तो कई चीजें नेम से के लिए, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू बी अवेयर एज सिटीजन्स कि हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करें कि रेगुलेशन लाओ, ऐसी पॉलिसी बनाओ, ये अलाउ करो, नहीं करो, राइट?
तो बहुत सी चीजें हैं. आई थिंक दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट डिबेट दैट वी कैन गेट इनटू. But fintech requires security of the topmost level and things are being done from a regulatory perspective. We are slow और वो हम जिंदगी भर slow ही रहेंगे because hackers are far ahead of us. Far ahead of us. Yes, no doubt. Okay, thank you very much, Lakshmipatji and Ravi. Thanks All for- right, we Thanks for a good question, Vijay. No problem. Thank you. thanks. So we have one more question from Jinesh Ji. He says, what's your view on NPA management on alternative-based lending? Any recent data on default percentage of new age app-based lending? So Right, that's there in the right, chat. Yeah. Right. So what's happening is NPA wise. So आपको मैं example बताता हूँ कि how does lending with a fintech partnering with a bank और NBFC work. क्या होता है कि एक फिनटेक जाता है, बैंक को बोलता है या एनबीएफसी को बोलता है कि देखिए हम है ना लोगों को लोन देंगे, लोग हमें पैसे दे देंगे, आपके इतना रिटर्न हम लाके दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी एनबीएफसी, आप लाइसेंस्ड हो, आप अंडरराइटिंग करने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी कि उसका डिसीजन लेने का कि लोन देना है नहीं देना, बट हम आपको एक टेक्नोलॉजी से सारा डेटा पॉइंट दे देंगे जिसके बेसिस पे लोन दे दिया जाएगा या दे सकोगे आप हाँ ना करके. और उसमें एक अग्रीमेंट होता है कि देखिए हम इतना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हर इंडिविजुअल को अलग अलग इंटरेस्ट, और उसमें हम कुछ अपनी सिक्योरिटी गारंटी भी देते हैं. दिस इज कॉल्ड स्किन इन द गेम या FLDG बोलते हैं उसको, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, कि मैं लेके आ रहा हूँ निहाल जी को कि निहाल जी 10,000 रुपए के लोन पे डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप मेरे से 1,000 रुपए ले लो लेकिन निहाल को 10,000 रुपए दे दो, 1,000 रुपए एज ए डिपॉजिट, चार्ज नहीं. तो निहाल जी को आपने 10,000 दे दिए, अब निहाल जी ने पैसे दिए तो 10,000 रुपए पे 200 रुपए इंटरेस्ट करके पैसा दे दिया, एनबीएफसी को इंटरेस्ट मिल गया, मैंने टेक्नोलॉजी कमीशन ले लिया. बट यहाँ क्या होगा कि मान लो निहाल जी डिफॉल्ट करके 10,000 रुपए नहीं दिए, हो सकता है रिकवर ऑब्वियसली ऑफिशियली एनबीएफसी ही कर सकता है, बट उसने अपनी आउटसोर्स कर रखी है या एजेंसी है जो गई, उसको पैसे नहीं मिले, तो 1,000 रुपए जो आपने डिपॉजिट दिए थे उसके बिहाफ पे वो आपके सीज हो जाएंगे कि भाई आपकी वजह से डिफॉल्ट हुआ. और ये एक अरेंजमेंट चलता था फिनटेक में और चलता है टू अ लार्ज एक्सटेंट. क्यों? क्योंकि मैं जाके बोल रहा हूँ कि निहाल को दो बेसिस, निहाल जी का डेटा ये है और ये हम बता रहे, ये मॉडल हमने बनाया है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि भाई हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी शुरू में कि कुछ भी चालू नहीं हो, कुछ चालू करने के लिए कैपिटल एफिशिएंट, कैपिटल एफिशिएंट स्ट्रक्चर बनाया गया कि मैं एनबीएफसी नहीं हूँ बट मैं ये काम करवा सकता हूँ एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी. और ऐसा करके सारी कंपनियां फिनटेक में, पर्सनल फाइनेंस वर्टिकल में आप जितनी कंपनियां देख रहे होंगे, दे ऑल स्टार्टेड गेव लोन्स और ये सारा काम हुआ. प्रॉब्लम इसमें ये है कि अब रेगुलेटर बोल रहा है या बोलेगा कि अरे ये तो टू एन एक्सटेंट प्रॉक्सी लेंडिंग हो गई कि फिनटेक रिस्क ले रहा है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए. देयर इज अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन. ग्लोबली भी यही प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है कि अगर गूगल चाहे तो सबको लोन दे दे तो फिर बैंक्स का क्या होगा वगैरह वगैरह. अब मैं बताता हूँ डिफॉल्ट का केस. तो डिफॉल्ट डिपेंड करता है किस सेगमेंट पे आप डील कर रहे थे. तो जब मैं एक एनबीएफसी के पास गया और मैंने बोला कि मैं भारत सेगमेंट या ब्लू कॉलर सेगमेंट को लोन दूंगा, तो वो मुझे ऑब्वियसली बोलेगी कि मेरे को रिस्क ज्यादा लग रही है, आप ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट दो या ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके दो या ज्यादा प्रोसेसिंग फी, किसी भी तरह मेरा पैसा ज्यादा आना चाहिए बिकॉज रिस्क ज्यादा है. उसी तरह कोई अगर बोलेगा कि मैं तो यार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे रहा हूँ या जो बच्चा कोर्स कंप्लीट कर रहा है उसको दे रहा हूँ, ठीक है यार वो तो सेफ लोन है. तो इस पे वैरी करता है. अगर हम जनरल ब्लू कॉलर एप्स की बात करें तो वी हैव सीन डिफॉल्ट 20-30% भी मार्केट में हुए हैं, वाइल द लीडर इन दिस स्पेस ग्लोबली ताला क्लेम्स कि हमारा डिफॉल्ट परसेंटेज 5% से कम है. तो एग्जैक्ट तो किसी का नहीं बताया जा सकता. दूसरा कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है बिकॉज एक फिनटेक जब जाता है दे नॉट ओनली लुक एट एनपीए बिकॉज उसका काम लेंडिंग का बिजनेस नहीं है कि 2 रुपए लेके 4 रुपए का बिजनेस बनाया, उसका काम टेक्नोलॉजी का है, डेटा का है. तो क्या वो उस डेटा से क्रॉस लेवरेज करके कुछ और बेच के पैसे कमा पा रहा है? शायद हाँ. अगर उसने इंश्योरेंस बेच दिया तो एक कस्टमर से 2 का लॉस हुआ बट 1 रुपए की इंश्योरेंस बेच के 1 का लॉस ऑफसेट कर लिया. तो इस तरह एक आप जैसे बोलते हो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को इवैल्यूएट करना वर्सेस एक ट्रेडिशनल हार्डवेयर या इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करने में फर्क है बिकॉज सॉफ्टवेयर वाले का सारा कॉस्ट अपफ्रंट खर्चे में चला गया सॉफ्टवेयर बनाने में, जबकि वो उसको रीसेल करेगा, जबकि अगर आप सामान ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें नहीं होता. तो यही सेम डिफरेंस डेटा वाले बिजनेस में है कि डेटा किस लिए लिया जा रहा है, क्या क्या किया जा सकता है उस डेटा से, उसकी क्या वैल्यू है, या कस्टमर लाइफ साइकिल में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना स्पेंड कर सकती है, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो evaluating a fintech on just the default rate
might be challenge because we are just trying to build data science models कि कितना क्लोज हम जा सकते हैं कि भाई हमें 100% एक्यूरेसी मिल जाए, जो कि नहीं मिलनी, वो फिर से इनोवेशन का गेम है जो चल रहा है अभी. सम एज आई सेड ताला क्लेम्स कि भाई 95% प्लस हमारा रिकवरी रेट है, वाइल इन जनरल मार्केट में कंपनीज है जो 70-80 पे भी चल रही है, बट उन्होंने लोन पे रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर दी इंटरेस्ट की. तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर देयर. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, दिनेश? Hello. Okay, I think Jinesh ji is not there. So there's one more question from Disha ji Dugad, which is, what is the scope of financial services consulting to convert into fintech in India? Financial services consulting, as in, I'll have to, Disha ji, if you can speak, I think, detail down on the. I can answer that question for Disha ji. Sure, sure. Yeah. Reason is not because of fintech background, because of my consulting background. Because that question I am most appropriate in terms of consulting. So there are so many institutions which are older banks, cooperative banks, they all want to become a fintech at some point, at least a part of it. So Right. वहाँ पे most of the people who are driving this is a consulting plus technology people together. ये it's a huge scope, because for example देता हूँ जो I think we did it, सरस्वत बैंक है, छोटा बैंक है, 3,000 करोड़ का total उसका base है. They are very old, they are cooperative bank, and they want to have, let's say, fintech app like what Scriptbox has it, but they don't know what to do. And how do they move this around? So typically not approach, let's say, companies like just example is udhar.com, or the special, but they will not reach out to techies like, let's say, Ravi. They'll reach out to a lot of IT services company कि उनको कैसे करना है, how do I do it? So example would be, let's say, Infosys, Happiest Mind, और भी digital companies वहाँ पे जाते हैं. So scope बहुत है उसका, but it is coming from a technology angle. It is not coming from policy regulation angle. Consulting starts from a technology, and then it obviously to align with RBI rules and regulation, but scope is huge, and we have seen that space is opening up because all large companies have done it. Now the smaller segments of bank like Saraswat Bank है, और भी छोटे-छोटे banks है बहुत सारे, इनको करना है, तो वो उसका scope बहुत है. But again, the starting point, ending point is technology. The technologists are doing the consulting, and not the, let's say, policymakers are doing any consulting in that space. Okay. And one more point to add to that, Disha ji, if broadly, if you look at any form of service that is being offered manually, if you can convert it into a product mode and then scale it, तो आप fintech में आ जाओगे और वो बहुत बड़ी opportunity बन जाएगी. अगर आप इस ग्राफ को मैप को देख रहे हो, fintech मैप को, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो इनफॉर्मली चल रही थी, चाहे इंश्योरेंस हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, है ना, LIC एजेंट के थ्रू हो रही है. अगर उसको आप एक प्रोडक्ट फॉर्मेट में एक स्केलेबल बिजनेस बनाने की कोशिश करो, दैट बिकम्स फिनटेक. एंड एवरी टेक एपीआई इतनी कमोडिटाइज्ड है कि आपको कुछ सोचना नहीं है. मुझे अगर उधार पे इंश्योरेंस बेचनी है, आई जस्ट पार्टनर विद वन कंपनी कॉल्ड डिस्कवरी और मैं इंश्योरेंस सेलर बन गया. मुझे कुछ सोचना ही नहीं. एंड देन ऑब्वियसली सोचना ये है कि रेगुलेटर को क्या जवाब देना है, लीगल क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी, वो अलग बात है, बट अदरवाइज मुझे कुछ नहीं सोचना है. मुझे अभी स्टॉक सेल करना है या आईपीओ सेल करना है, बहुत इजी है, शायद मैं कल साइन अप करके ऑन कर सकूं अपने सिस्टम पे. और टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो आपका रहेगा डेवलपमेंट का, कि आज टेक टैलेंट बहुत कॉस्टली हो गया एंड ऑल. बट यू अगर आपने एक बार बिल्ड कर लिया तो देन देयर इज, आप स्केल जो कर सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ, वो एडवांटेज है. तो कंसल्टिंग से प्रोडक्ट साइड में अगर आप सोचो तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. Okay. Thank you so much, Ravi. Couple of more questions. So I think there's one question related to valuation, which we'll take separately. So there's one last question from Rahul ji, which is, from your vantage point, do you see traditional bank adopting new age technology in the future and stay powerful, or you see fintech startup eventually bridging the trust gap and replacing the banks? Got it. So Rahul ji, this is a classic debate that is going on. What will happen when Google becomes the largest fintech players? The largest fintech player in that sense, because they own the distribution. And Google Pay की अगर हम सिर्फ बात करें, अगर वही सब लोन सेविंग्स सब कुछ करने लग गया, तो बैंक के ऐप कौन यूज करेगा? एक जो उसमें पॉइंट आता है कि द स्पेस इज टू ह्यूज फॉर एवरी प्लेयर टू बी अकोमोडेटेड एज ऑफ नाउ. आगे when we are talking about 5-10 years later, क्या होगा? Will there be a convergence? Will there be regulation जिसकी वजह से ये segregate होगा? तो जब नियो बैंकिंग आ रहा है, तो एवरी ऐप, फिनटेक ऐप इज ट्राइंग टू बिकम अ बैंक इन इटसेल्फ, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन ओन कर रहा है. जबकि बैंक जो है, अगर उसको सिर्फ लाइसेंस की वजह से पैसा रखने का काम कर रही है, तो वो बैक एंड में चली जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में चली जाएगी. बैंक अब ये चाह रहा है कि मैं भी तो यार ये सेम काम कर सकता हूँ जो ये ऐप कर रहा है.
और ये एक कम्पिटिटिव माहौल बन रहा है जहां पे बैंक पार्टनर भी कर रही है फिनटेक के साथ, बिकॉज दे नो कि अगर हम पार्टनर नहीं करेंगे तो भी हमारा लॉस है, और बैंक अपना खुद भी रिवैम्प कर रही है पूरे के पूरे प्रोसेसेस को कि अरे हम भी एफिशिएंट सर्विस दें ताकि हम compete कर सके फिनटेक पे। तो ये थोड़ी सी खट्टी मीठी दोस्ती है इन दोनों के बीच की, फिनटेक्स की और बैंक्स की, और अभी कोई भी डिसीजन फाइनली नहीं लिया जा रहा बिकॉज बैंक को बोला जा रहा है कि आप अपना पूरा डेटा ओपन कर दो। तो आई वॉज अबाउट टू कम टू दिस न्यू थिंग दैट इज गेटिंग लॉन्च विच इज कॉल्ड अकाउंट एग्रीगेटर। आज आपको अपना बैंक स्टेटमेंट हजारों जगह देना पड़ता है प्रूव करने के लिए, आईडी के लिए या इवेल्युएशन के लिए। कल आप सिर्फ एक ओटीपी से अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर कर पाएंगे। ये इंडिया स्टैक का फाइनल पीस आ रहा है, लॉन्च हो रहा है। अगले साल ये शायद यूपीआई जितना बड़ा हो जाए, 1-1.5 साल में। तो अगर वैसा होगा तो कितनी चीजें फास्ट हो जाएंगी, कितनी चीजों में इंस्टेंटली काम हो पाएगा, राइट? अब बैंक बोलेगा कि मैं अपना डेटा दे रहा हूँ, मेरे बैंक स्टेटमेंट के डेटा से तो मैं बहुत चीजें समझता था, बट यही चीज अगर एक ऐप समझने लग जाएगा तो वो भी तो बहुत सारा एनालिसिस लगा पाएगा। तो ये डिबेट अभी चलती रहेगी और बैंक को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्लेयर्स का यूज लेना होगा। वो ओवर 5-10 ईयर्स क्या होता है कि मतलब अगर इफ सम जायंट इज कमिंग और वो सबको गॉबल अप कर जाए या सबको ही खा जाए कि नहीं मैं इसको भी कर लूं, तो फाइनेंस स्पेस थोड़ा बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट। क्योंकि जैसे आपने यूपीआई में देखा होगा, रेगुलेटर केम अप एंड सेड कि 25% से ज्यादा यूपीआई आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, और ये करना पड़ा सडनली। यूजुअली जो स्ट्रक्चर चलता है टेक्नोलॉजी में वो होता है कि आप यू बिकम अ मोनोपोली और अ डुओपोली। मोनोपोली अवॉइडेड होता है बाय रेगुलेशन, तो डुओपोली पे काम चलता है कि उबर और ओला है। बट फाइनेंस ऐसी चीज है कि जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर नहीं हो सकते क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है। बट जब सब चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी या 5 साल बाद, तो क्या ऐसा हो पाएगा? दैट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर। तो एज ऑफ नाउ इट इज सेड्स कि द फाइनेंस इज नॉट अ विनर टेक ऑल मार्केट और लेंडिंग इज नॉट अ विनर टेक ऑल मार्केट। और एक्चुअली ऐसा हो रहा है अभी कि एवरी ऐप इज सेइंग कि आई कैन डू द लेंडिंग, बिकॉज लेंडिंग करने के लिए चाहिए क्या? केवाईसी, आधार है, क्रेडिट ब्यूरो, एपीआई में मिलता है, मतलब आपका क्रेडिट रिकॉर्ड चेक हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट का डेटा वो भी एपीआई में मिलता है, और मेरे को अपना एनालिसिस लगा के पैसे देने हैं, मैं एनबीएफसी से पार्टनर करके दे दूंगा। तो आई नो वेयर यू आर ट्रांजैक्टिंग, जहां पे भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है आई कैन एम्बेड फिनटेक। सो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड फाइनेंस और एम्बेडेड लेंडिंग, एंड दिस इज कमिंग as a huge movement where कि you think of any app, let's take off your security guard using the gate app in your society। तो वो जो गेट कंपनी, वो ऐप वाली कंपनी है माई गेट मान लीजिए, तो वो बोलती है कि यार मैं दूंगी सिक्योरिटी गार्ड को लोन बिकॉज वो ऐप ये रोज यूज करता है, मुझे पता है कौन सी सोसाइटी का है, कौन सी सैलरी उसको मिल रही है। एक पेरोल कंपनी आपके सिस्टम में, वो बोलेगी अरे लोन वोन का चक्कर मेरे से ज्यादा बढ़िया कौन बताएगा बिकॉज मैं तो पेरोल पे बैठी हूँ। एक फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, उसको लोन चाहिए, तो वो फेसबुक बोलेगा कि आई नो ये कितना कमाता है, कितने इसके फुटप्रिंट्स हैं, कितना इसका रीच है, मैं दे दूंगा। तो एवरीवेयर देयर इज दिस क्रॉस पार्टनरशिप बीइंग फोर्स्ड बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स टू इनेबल अ यूज केस विच इज कि भाई तुरंत वहीं पे काम हो गया आपका, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एम्बेडेड लेंडिंग। I want to I think- add. I Yeah, want go to ahead. add to what Ravi ji said and trying to use different perspective to what Rahul ji asked. So if you see this picture, these are all slices of different segments within ecosystem of fintech. जो photo दिखा रहे हैं Ravi ji. So the trust gap, I think today RBI does not allow to open a full-fledged bank without having a branch infrastructure. There is no regulation. I am very hopeful at some point in time, maybe another 2-3 years, when it will allow a full-fledged bank. When I say full-fledged means from lending to credit and from account opening to mutual funds, everything will be allowed without having any infrastructure, physical infrastructure, having only digital infrastructure. I think that's where what we see players like Paytm come in play. वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस होने वाला, वहां से जब वो होगा ना, द ट्रस्ट गैप कम होने वाला है। एंड वी हैव सीन एग्जांपल, द बिगेस्ट एग्जांपल व्हाट आई नो इज अ बैंक कॉल्ड कैपिटल वन इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसका $50 बिलियन का ईयरली ट्रांजैक्शन है एंड इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल ब्रांच। वहां पर रेगुलेशन अलाउड करता है, इसलिए आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू हैपन। यू माइट सी इन नेक्स्ट 5-10 years what we today see HDFC Bank is the biggest, maybe in couple of years most likely some of from this any of these players जितना आप देख रहे हो मैप में से, some might be become that जिस दिन ये रेगुलेशन अलाउ हो गया, and people who are in fintech space they are going to get a disadvantage क्योंकि
ये जो आप देखो जो रवि जी ऑपरेट करते हैं वो एक स्पेस है उनका, बाकी सब अलग अलग स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड मे बी द पेटीएम इज ओनली व्हिच ट्राइंग टू ऑपरेट एवरीवेयर, एंड दैट्स व्हाई द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि उसका कुछ वैल्यूएशन नहीं ज्यादा है, ये है. बट आई थिंक कंपनीज लाइक दैट दे आर गोइंग टू गेट एडवांटेज. दिस इज द रेगुलेशन ओपन किया उस दिन, where banks will become without any physical infrastructure, or what that depends on our capability of as a private citizen, that do we trust that there is no physical branch. Or yeah, it's not nothing new is happening it's already happened in the outside, other than the India, it's already happened. $50 billion the Capital One, and Capital One is not private bank, it's a public listed company. Does it help, Sir Rahul ji? And trust, It definitely trust, does. I think the example and definitely does. Rahul ji, trust gaps close कब होता है? More citizens try to use technology, और trust gap भी बंद होता है, right? And that I think in 25 to 30, in next 5-10 years, I'm hopeful either Paytm or someone else is going to become that bank. So लक्ष्मीपत जी, गुड पॉइंट देयर. और उसमें अगर आप देखो तो ऑलरेडी वीडियो केवाईसी से बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, ये तीनों चीजें डिजिटल केवाईसी से. इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड अकाउंट, बट इट इज बीइंग ऑफर्ड by all the banks, all major banks as of date. As we speak, we are already partnering with a few of the banks and helping people open bank accounts who are coming on our app. To give And- another, sorry, Ravji, go ahead. Yeah, go ahead. To give analogy, 2000 साल से पहले, मतलब 20 years back, if someone asked or anybody of us कि you can do say transaction without calling a broker and at click of button, we will not have believed all this. अभी तो लोग लाखों का ट्रांजैक्शन विदाउट कॉलिंग एनी ब्रोकर, पीपल आर डूइंग इट, राइट? एंड सेटलिंग ऑल्सो. पहले सेटलमेंट यूज्ड टू बिग इशू, अभी तो सेटलमेंट ऑटोमेटिक होता है, किसी कुछ करना ही नहीं है. द सेम थिंग विल हैपन इन बैंक आल्सो, एंड दैट नाउ दैट ट्रस्ट आ चुका है ना शेयर ट्रेडिंग में लोगों को, कि किसी से बात नहीं करना है, स्क्रीन पर देखना है. And across India, you can, and that's why, because of technology, we see there were local exchanges before 2000. Everybody used to go to the ring and अपना trade करते थे. Because of technology, वो local खत्म हो गया. Everybody is on one screen where people can see it. तो वो trust ऐसे तुरंत नहीं आया, it took time. I'm thinking by 2025-30 वो बैंक का भी ये होने वाला. We will not have SDFC Bank, the leading bank, by 2028, 29, 30. Either maybe Paytm if it survives or someone else. But my view is that fintech is big space. Time to short banks, sir. Thanks, Raviji and Lakshmi. Yeah. Any other question, anyone? Because I think we are running a little out of time. So I'll maybe make the final. Yeah. 2 slides. Over to you, Raj. So broadly, the message that I wanted to pass to all of you from this map is, if you go into looking at each of these business models, you will figure out that they have just picked a piece and doubled down on that and automated that. तो अगर आप एग्जाम्पल लो, फाइल करके एक कंपनी, आपने नाम नहीं सुना होगा इसलिए मैं उसका चर्चा कर रहा हूँ, ये करती है एक्सपेंस मैनेजमेंट का काम, कि भाई एम्प्लॉय की एक्सपेंस एक कंपनी में, कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. ये काम आज की डेट में मैनुअली होता है. कैन वी ऑटोमेटेड दिस? बिकॉज SMS पे, ईमेल पे 10 तरह के एक्सपेंस आते हैं एम्प्लॉय के, और उसको हम पूरा ऑटोमेट कर दें ताकि HR को दिक्कत नहीं हो, एडमिन को दिक्कत नहीं हो. हैपे ने ऐसे कार्ड लॉन्च कर दिए जिसने बोला कि आप अपने एम्प्लॉयज को हैपे का क्रेडिट कार्ड दे दो, तो एम्प्लॉय जितने एक्सपेंस करेगा वो सीधा सीधा एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा. ऐसी चीज़ों पे आप अपने आसपास, अपने डे टू डे इकोसिस्टम में ऑब्जर्व करें कि क्या चीज़ आज की डेट में मैनुअल है, फाइनेंस से रिलेटेड है. ऑटोमेशन का आप एक बिजनेस प्लान बनाएं और आप एक खुद फिनटेक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. बैंक जाते हैं, आप देखिए कौन सी सर्विस ब्रोकन है, चाहे वो क्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई बैंक साइनिंग से रिलेटेड हो. जैसे करंट अकाउंट ओपनिंग है, बैंक्स अभी भी थोड़ा सा रेगुलेशन का वेट कर रहे हैं, बट अदरवाइज दे आर रेडी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर टू गिव करंट अकाउंट्स विदाउट गोइंग टू द बैंक. जबकि करंट अकाउंट स्पेशली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटर किसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जहाँ पे वेरिफिकेशन बहुत नीडेड होता है. एंड यू पिक सर्टेन पीसेज ऑफ इट और आप बोले अच्छा हम ये कर सकते हैं. और कंपटीशन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है. इतना बड़ा स्पेस है कि अगर आप इंडिया में कुछ भी बना रहे हैं, देयर इज लाइक आप देख रहे होंगे लेंडिंग में ऑलरेडी इतनी कंपनीज हैं. 25 से 35% एक्चुअली फिनटेक में सारी बातें लेंडिंग पे चली जाती है. तो कितनी तरह की लेंडिंग है, गोल्ड लोन हो गया, MSME लेंडिंग हो गया, आपका PM स्वनिधि स्कीम आई उसकी लेंडिंग हो गई, MFI हो गई, प्रीमियम कस्टमर की लेंडिंग हो गई. एंड एवरीवन हैज देयर ओन DNA. तो आप एक के लिए सॉल्व करोगे और बाद में आप एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे. तो on a very broad level, all these can converge and become maybe 4-5 players.
कि 500 नहीं दिखे आपको मैप पे 5 ही दिखे, बिकॉज किसी को कुछ दूसरा करने में कुछ ज्यादा लगेगा नहीं इफ दे ओन द डिस्ट्रीब्यूशन। बट क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, इतना कुछ मैनुअल करना पड़ता है, इतनी पार्टनरशिप की एक आदमी की बस की नहीं है कि वो सब कुछ कर ले। बट टेक्नोलॉजी उस डायरेक्शन में मूव हो रही है कि वेयर फाइल कैन टुमारो कम एंड से अरे मैं तो एक्सपेंस जानता हूँ इस एम्प्लॉय के या इस कंपनी के, मैं आपको लोन दे दूंगा। कोई भी कुछ भी कर रहा है, इंश्योरेंस भी मैं बेच दूंगा क्योंकि मुझे पता है। और ऐसी क्रॉस पार्टनरशिप्स आ रही हैं ऑलरेडी इस पूरे इकोसिस्टम में, एंड इट इज थ्रेटनिंग द इनकम्बेंट्स which are sitting on top and saying कि हम तो आराम से बैठे हुए हैं, चलो आएगा ही कस्टमर हमारे पास, जाएगा कहाँ पे, ठीक है। So that is one. The other piece is, sorry, yeah. So one more thing, I think some of you might be interested कि भाई हमें अगर fintech पे bet करना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो some of the avenues are कि obviously आप angel networks पकड़ सकते हो, आज की डेट में बहुत easy हो गया है becoming an angel, and there is this one called as Yatra Angel Network. You can explore this. This is a community of BFSI individuals who have been doing phenomenal work over the last 5 years, and this is led by Abhishant Pant. और आप इसमें चाहो तो फिनटेक के बारे में ज़्यादा समझ भी सकते हो बाय बीइंग एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी, या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अदर क्वेश्चन कि भाई हमें हमारा स्टार्टअप आइडिया हम किसके पास जाएं, तो देर इज IIM लखनऊ का एक प्रोग्राम है साइफाई, सिडबी सेंटर फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड देन देर इज CII IIM अहमदाबाद का एक इनिशिएटिव है भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव। आपके पास कोई आइडिया है, यू सबमिट टू देम, दे विल प्रोबेबली हेल्प एंड गाइड एंड फंड, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। द अदर पार्ट इज कि भाई मुझे फिनटेक के बारे में अपडेटेड रहना है, मैं क्या करूँ, कहाँ पढ़ूँ, तो यू फॉलो आई स्पिरिट, वॉलंटियर करना चाहते हो आप, इन्वॉल्व होना चाहते हो, यू गेट इन टच विथ फिनटेक मीटअप के ऑनलाइन कंटेंट, ऑफलाइन कंटेंट, फिनटेक यात्रा, फिनटेक एंजल नेटवर्क जो मैं बताया तो वो सब इन्हीं की देन है। और काफ़ी एक्टिव कम्युनिटीज़ हैं, आप अगर इसमें रहोगे तो यू विल गेट टू नो फिनटेक में क्या क्या हो रहा है। आपको भारत की प्रॉब्लम समझनी है, जो हम इंक्लूसिव की बात कर रहे थे, तो आप एक सबस्टैक है, सबस्टैक एक न्यूज़लेटर वेबसाइट है, उस पर D91 लैब सर्च करना सबस्टैक, यू विल गेट टू नो सम आर्टिकल्स ऑन कि भाई भारत में क्या प्रॉब्लम है। एक गरीब आदमी जो फल बेच रहा है, उसकी डे टू डे प्रॉब्लम क्या है, उसको रोज क्रेडिट लेना पड़ता है, हाउ कैन यू सॉल्व दैट, कैसे ऑटोमेट हो सकता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल दैट इज कमिंग ऑन, एंड दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू सो दैट आप फिनटेक के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ ऑन योर ओन। एजुकेशन किसी को लेना है, सर्टिफिकेशन करना है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज द डिजिटल फिफ्थ, या SP जैन या IIM कैलकाटा के भी प्रोग्राम्स हैं विच आर देयर, विच आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन। कुछ आपको वर्कशॉप्स मिलेंगी, कुछ आपको फ्यू लैक्स के कोर्सेज मिलेंगे, बट आप फिनटेक के बारे में ब्रॉडली बहुत डिटेल में समझना चाहो तो फ्री में जानना है तो ऑब्वियसली मेरे से भी बात कर सकते हो, कुछ एक्सटेंट तक मैं बता सकता हूँ। सो दैट्स ब्रॉडली इट दैट आई वांटेड टू कवर from a lending side. Yeah. So you can Alright. be in touch with me on ravisetia.com or आपके पास numbers हैं ही मेरे. That's it. Thank you. Such an insightful and interactive session. Now I would request Sumit Bed for a vote of thanks. Do we see Sumit ji? I don't think so. SMG is not online. Just a sec. राहुल जी आप ही कर लीजिए। Yeah, sure. गुरुदेव के चरणों में वंदन, TPF के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक रनीश मुनि के चरणों में वंदन, बैंगलोर में विराजित सभी साधु साथियों के चरणों में वंदन। We would like, on behalf of TPF, I would take this opportunity to thank Ravi, who is not only an active member of TPF as he mentioned, but is somebody that I've also had the opportunity to interact with quite a bit on the platform. This was a very, very insightful session. I think there were a lot of aspects हम बहुत पढ़ते हैं. We're surrounded by information today, but I think it was very well organized. There are lots of thoughts emerging right now, and I think I really liked how he answered a lot of the questions and also gave us direction at the end of various aspects of how you could be part of this fintech revolution that is happening. So he's demystified a lot of the mystery around this particular sector. Thanks a lot, Ravi, and thank you for taking the opportunity. Also would like to call out the team that put the event together.
Nihal ji, Shraddha ji, and everyone else who was involved the TPF Bangalore Tech and Media team as well, and the president and secretary for all the support that they have been providing right through. We look forward to more such insightful sessions. Hopefully, we can have follow-up sessions. I know there were a lot of discussions around security, around trust, which are topics by themselves, large topics by themselves, and we hope to see you on multiple such platforms, Raviji. Thanks a lot. And thank you to all the participants for making time on a Sunday morning. I know this is difficult sometimes, but I'm hoping everyone had some takeaway. And please stay in touch. We have more such insightful sessions lined up in the future, and which we'll be sharing across groups. I think it is your participation that gives us the strength and excitement to continue having these events. So thanks a lot, and have a good remaining Sunday. Thank you. Thanks, Rahulji. Thanks everyone for joining. Thank you. Thank you. We're just closing the session now.